أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبھی سسٹرز کا اردو کی بیسک کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ آپ کا یہاں پر آنا قبول کرے اور آپ نے جو جو مقصد اور جو جو نیت سے کلاس کو جوائن کیا ہے اللہ آپ کو استقامت کے ساتھ وہ پوری کرائے آپ کے مقاصد۔ جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ یہ ہماری اردو بیسک کی کلاس ہے نا؟ تو آج ہمارے انٹروڈکشن کلاس ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم اردو کیوں سیکھ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اس کے آپ کو کیا کیا فوائد ملنے والے ہیں، یہ سبھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو پہلے دیکھیں اردو کیا ہے، ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، اردو سے ہمیں کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں، اگر ہم اردو سیکھ جاتے ہیں تو ہمیں اس کے کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں، ہم اس کا استعمال کس کس جگہ پر کر سکتے ہیں، یہ سب ہم دیکھنے والے ہیں اور کس طریقے سے ہم یہ کلاس کمپلیٹ کرانے والے ہیں، آخر میں اس کا بھی ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں سبھی لوگ پہلے اچھی اچھی نیتوں سے اپنے مضبوط ارادے سے نیت کرے کہ ہم انشاءاللہ اردو پورا سیکھیں گے، ہے نا؟ اور یہاں پر بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے ٹرکس کے ساتھ آسان ٹرک کے ساتھ آپ کو اردو بہت اچھا سکھایا جائے گا۔ ہماری یہ 4th 5th بیچ ہے کہ جو اردو سیکھ کر ہے نا بیسک سے سٹارٹ کیا، جس نے زیرو سے سٹارٹ کر کے ابھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے اردو فراٹے دار اردو پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور کوشچن آنسرز بھی لکھ رہے ہیں، ایسے ہماری سبھی سسٹر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی تھوڑا سا استقامت کے ساتھ آنا ہے، کلاس جوائن کرنا ہے بلا ناغہ، اور پھر انشاءاللہ آپ بھی آپ کے اردو کی جو کورس ہے وہ پوری طریقے سے کر پائیں گے۔ چلتے دیکھتے ہیں، پہلے اردو کا تعارف دیکھتے ہیں، ہم اردو کیا ہے۔ تو پہلی بات کہ اردو ایک مخلوط اور ملی جلی زبان ہے۔ مخلوط یعنی کیا کہ جس میں بہت سارے زبانوں کے الفاظ شامل ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو اردو ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں بہت سارے زبانوں کے الفاظ، جیسے ہندی سے کچھ الفاظ آئے، کچھ مراٹھی کے الفاظ لیے گئے، کچھ ترکی کے الفاظ ہے نا؟ تو یہ ملی جلی زبان ہے ہماری اردو، صرف مسلم لوگوں کی زبان نہیں ہے۔ دیکھو آج سے کچھ سال پہلے مطلب جب اردو کا عروج پہ تھا ہے نا، جب ہمارے بھارت پر ہے نا بادشاہ وغیرہ حکمرانی کرتے تھے، تو تبھی کے ہندو بھی ہے نا اردو زبان بولتے تھے۔ تو اردو زبان پرٹیکولر خاص صرف مسلم کے لیے نہیں ہے، تو اردو زبان ملی جلی زبان ہے نا؟ سبھی جو زبانوں سے اس میں الفاظ شامل ہو گئے، اسی لیے اسے کیا کہتے ہیں، مخلوط زبان اور ملی جلی زبان کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اردو لفظ جو ہے بیسک، جو اردو لفظ ہے تو کون سی زبان کا ہے، تو وہ ترکی زبان کا ہے، اور اس کے جو میننگ ہے، اس کے میننگ ہوتے ہیں لشکر کے، ہے نا؟ لشکر پتہ ہے آپ کو؟ پہلے اگر کسی مقصد کے لیے کسی کام کے لیے بہت سارے لوگوں کا ایک جھنڈ ہے نا، ایک مطلب ان کی ٹیم نکلتی تھی تو اس کو لشکر کہتے ہیں۔ تو لشکر میں پرٹیکولر ایک قبیلہ، ایک خاندان، ایسے لوگ نہیں ہوتے تھے، الگ الگ قبیلوں کے، الگ الگ خاندان کے، ہے نا؟ جیسے پہلے قبیلے ہوتے تھے ویسے قبیلوں اور خاندانوں کے لوگ ہوتے تھے، یعنی کہ کیا ان شارٹ میں کہ مختلف لوگ ہوتے تھے الگ الگ قسم کے، ہے نا؟ الگ الگ خاندان سے تعلق رکھنے والے، الگ الگ قبیلے سے تعلق رکھنے والے، تو اس لیے اس کو کیا کہا گیا ہے، لشکر کہا گیا ہے۔ لشکر اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اردو کے، لشکر کے، کہ جیسے لشکر میں بھی مختلف زبان بولنے والے، مختلف خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری اردو میں بھی کیا ہے کہ مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہو چکے ہیں، ہاں، جیسے ہندی کے، مراٹھی کے، ترکی کے، ہے نا؟ ایسے بہت سے دیگر زبانوں کے الفاظ اس میں شامل ہے۔ اس لیے اس کی میننگ کیا ہے، لشکر کے ہے اس کے معنی، اردو کی جو میننگ ہے وہ ہے لشکر کی۔ تو یہ کیا ہے، مشترکہ زبان ہے، پرٹیکولر مسلم کے لیے نہیں ہے، ہندو کے لیے نہیں ہے، تو سبھی قوم کے لوگ اس کو بول سکتے ہیں، اس لیے یہ اردو کیا ہے، ہماری مخلوط زبان ہے۔ تو اردو کو ان شارٹ میں ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، دو، ہے نا؟ اردو کو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ دو الگ الگ مطلب اس کو ہے نا دو الگ سے، یہ دو چیپٹر ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں، مطلب اگر ہم پڑھنے دیکھتے ہیں اردو کا مواد کیا کیا ہوتا ہے اس میں، تو ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ہوتا ہے دیکھیے اردو نثر،
उर्दू का क्या होता है, पहला जो होता है वो होता है नस्र। नस्र मीन्स क्या? नस्र होता है कि जिसमें असबाक यानी मवाद होता है सिर्फ, और दूसरा हिस्सा होता है नज्म वाला। तो ये दो हिस्से हिस्से हैं हमारे उर्दू के, हम ये देखने वाले। ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप एडवांस में जाएंगे, मगर आपको एक बेसिक ढांचा उसका पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो फिर ये है आपका नस्र और नज्म, दो हिस्सों को, दो हिस्सों में हम क्या कर सकते हैं, उर्दू को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं। हम हैं उर्दू के इल्म बरदार, हम हैं उर्दू के इल्म बरदार, हमको उर्दू जुबान आती है। तो देखिए है ना अशार, जो उर्दू की खूबसूरती है किससे झलकती है, उसके अशार से, नज्म से, और उसके मवाद से। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा उर्दू सीखने का मकसद क्या है, इसका हमें फायदा क्या होने वाला है। ये तो हमने देख लिया कि इसके दो हिस्से हैं, एक तो नस्र होता है, नस्र में हमें मालूमात दी जाती है, और दूसरा हिस्सा नज्म का होता है, जो मोटा मोटा आपको बता रही हूँ मैं। तो अभी से हमारा उर्दू सीखने का सबसे पहला मकसद क्या है कि हम उर्दू सीख कर दीनी तालीम में हम क्या करेंगे, इसका फायदा उठाएंगे। अब आपको सवाल हो रहा है दीनी तालीम में हम कैसे फायदा उठाएंगे। तो देखिए, इस्लामी तालीम का, दीनी तालीम का, अच्छा तो देखिए दीनी तालीम का जो है बहुत बड़ा भंडार क्या है, बहुत सारा भंडार क्या है, उर्दू में मौजूद है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंग्लिश में नहीं है ना, अरबी में नहीं है। तो बहुत सारा भंडार। और ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है उर्दू हमारी सीखना, क्यों? तो उर्दू क्या है हमारी, उर्दू हमारी मादरी जुबान है। और जो बात बच्चे मादरी जुबान में हम जो सीखते हैं, तो वो हमें क्या होता है, कायम हमारे दिमाग में बैठ जाती है वो बात, है ना। और देखिए मादरी तालीम के जरिए हमें जो भी नसीहत की जाती है ना, तो वो क्या होती है, बच्चे बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। तो इसलिए तो दीनी तालीम का भंडार कैसे किस में है, उर्दू जुबान में, है ना। दीनी तालीम का बहुत ज्यादा भंडार, 80-90% भंडार जो है उर्दू में मौजूद है। और ये अगर हमें पढ़ना है तो इसके लिए क्या जरूरी है, हमें उर्दू आना बहुत जरूरी है। तो जैसे क्या कि कुरान का तर्जुमा पढ़ना है, देखिए आप मोबाइल का जमाना है ना, एआई का जमाना है मानते हैं, मगर कुछ भी हो सकता है ना। कभी हम पढ़ने बैठ जाए, है ना, हमारा वाईफाई है, लाइट चली जाए, डाटा खत्म हो जाए, तो अगर हमें उर्दू पढ़ना आता है तो हमें इन सारे झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं, हम हमारी बुक निकाल कर, है ना, कुरान निकाल कर उसका तर्जुमा तफसीर अगर उर्दू आता है तो हम पढ़ सकते हैं, है ना। और कभी भी पढ़ सकते हैं, है ना, लाइट हो नहीं हो, हम बाहर हो किधर भी हो, हमारे पास अगर बुक है तो हम उसका तर्जुमा मुतालिया कर सकते हैं। तो देखिए कुरान का तर्जुमा पढ़ने के लिए हम ये भी नियत से बैठे आज कि आप, मैं उर्दू सीख रही हूँ तो इसमें दीनी तालीम हासिल करना ये भी मेरा मकसद है ना। अल्लाह को राजी करना है, मैं दीन इल्म दीन सीखूंगी, कुरान की तफसीर पढ़ूंगी, है ना, कुरान की किस्से कससुल कुरान, ये भी है ना, उर्दू में इसका बहुत बड़ा भंडार है। तो ये छोटे छोटे हम क्या करेंगे, उर्दू सीखेंगे खुद भी, और किससे पढ़कर अपने बच्चों को नसीहतें करेंगे। जैसे छोटी छोटी इस्लामिक स्टोरियां होती है देखिए उर्दू में, तो ये, और देखो बच्चों को ये, हम सब यहाँ पर बड़े है ना, यहाँ पर छोटे बच्चे कोई नहीं है। तो हमारा मकसद क्या है कि हम उर्दू सीखे, और इस उर्दू की जो स्टोरियां हैं, कससुल कुरान है, इसके जो किस्से पढ़कर हम अपने बच्चों को नसीहत करेंगे। अगर आप देखिए आपके बच्चों को आप डायरेक्टली कोई नसीहत करते हैं कि तुमने, है ना, एक भी नमाज नहीं छोड़नी, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, तो उसके जहन में नहीं, ये उसको लगेगा कि अम्मी मुझे ऑर्डर कर रहे हैं। अगर यही बात आप कससुल कुरान के किस्से उठाकर, एक आधी स्टोरी सुनाकर, एक आधे किस्से है ना पीर औलियों के बोलो, हमारे सहाबा के बोलो, है ना, ये किस्से सुनाकर उनको अगर नसीहत करते हैं ना, तो उनके जहन नशीन हो जाती है नसीहत, और वो बिना उज्र करे, उसमें बिना नागा करे क्या करते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। ये भी हमारा मकसद रहना चाहिए कि हम इसलिए भी उर्दू सीख रहे हैं, है ना। कितना बड़ा, और देखो तरबियत का एक अहम किरदार अगर हमको अदा करना है, एज अ पेरेंट्स, एज अ मदर, है ना, माँ, एक माँ की किरदार को अगर हमें बेहतरीन अंदाज में निभाना है, तो उसके लिए आपको उर्दू सीखना बहुत जरूरी है। अब आप कह रहे होगे क्यों, क्या हिंदी, हिंदी सीखने वाले, इंग्लिश सीखने वाले ये तरबियत नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो देखा हमारे फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं कि जो उर्दू मीडियम से किसी का एजुकेशन हो गया होता है, किसी का हिंदी से, मराठी से, या फिर इंग्लिश से। तो आप खुद नोट करें कि अगरचे जो उर्दू तालीम हासिल करता है, तो उसके तहजीब तमद्दुन, है ना, अखलाक में आपको फर्क नजर आता है। किसके बनिस्बत, किसके, इंग्लिश मीडियम वाले के, मराठी मीडियम वाले की, ये आप खुद जानेंगे, आपको खुद को भी पता होगा। तो आप ये भी नियत करें कि मैं भी उर्दू सीखूंगी, और हमारा दीनी तालीम का जो जखीरा है, जो भंडार है, इसके जरिए हम हमारे बच्चों की तरबियत भी इंशाल्लाह करेंगे। फिर देखो, अगर हमें उर्दू आती है तो हम क्या करेंगे, कससुल कुरान बोले, छोटी छोटी इस्लामिक स्टोरिया बोले, ये सब पढ़कर अपने बच्चों को सुनाएंगे और उन्हें भी उर्दू सिखाएंगे।
क्योंकि लास्ट जो समर हॉलीडे थे ना, तो हमने भी हमारे रिलेटिव्स के है ना, छोटे छोटे जो बच्चे थे ना, उनको 1 मंथ का कोर्स लगाया था कि बेसिक तो पहले पढ़ना सीखे। तो अब वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जो स्टोरी है ना, उर्दू की किताबें, वो सब खुद पढ़ रहे हैं। तो एक डेढ़, ये तो हमारा कोर्स है ना, शॉर्ट कोर्स है, 3 महीने में आपको बिल्कुल पढ़ना आ जाएगा, उर्दू बेसिक पूरा पढ़ना आ जाएगा इंशाल्लाह। आप खुद सोचेंगे, देखा आज आपका पहला डे है ना, तो आज का डे और एंडिंग का डे, इस पर हम टेस्ट लेते हैं, तो आप खुद बोलेंगे कि मैं पहले दिन कैसी थी और अब कैसी हूँ। है ना, पहले दिन मुझे अलिफ बा नहीं आता था, और अब मैं इतना अच्छे से माशाल्लाह उर्दू पढ़ रही हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पूरी ट्रिक के जरिए देखने वाले हैं कि हम फास्ट ट्रिक के जरिए, थोड़ी आपको सिर्फ यहाँ पर आना है, बिला नागा आना है, बगैर छुट्टी किए आना है, और मेहनत जितना आपको होमवर्क दिया जाता है उतना सब आपने टाइम पर करना है। तो देखिए उर्दू क्या है, हमारी उर्दू जुबान में, अभी दूसरी जुबानों में और उर्दू में फर्क क्या है। तो उर्दू जुबान में जो मिठास है वो दूसरी जुबानों में नहीं है ना, मराठी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है। तो ये हमारी मादरी जुबान है, और इतनी मीठी जुबान है, मिली जुली जुबान है, तो इसलिए भी हमें सीखना जरूरी है। हम्म। और देखिए हमें अगर जमाने में अपना वकार बनाए रखना है, हम मुस्लिम को, हाँ, अपना वकार अगर बनाए रखना है तो हमें उर्दू सीखना बहुत जरूरी है। और ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने कौम की जुबान को इसका वजूद बाकी रखे, इसके तहजीब और तमद्दुन को बरकरार रखे। हाँ, सलीखे से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीखे से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं, है ना। और देखिए ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सोचते हैं ये तो उर्दू को तो इतना ये नहीं है, स्कोप नहीं है जैसे कि इंग्लिश को है। तो ऐसे ही हम ही हैं, हम ही पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो उर्दू को स्कोप अहमियत नहीं दे रहे, स्कोप नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आज क्या हो रहा है, देखिए उर्दू जुबान कम 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 से कम तर होती जा रही है। तो ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि हम खुद भी उर्दू सीखें और अपनी उर्दू जुबान का तहजीब व तमद्दुन को बरकरार रखें इंशाल्लाह। और देखिए आपने ये अच्छी अच्छी नियतें करके बैठना है कि हम इंशाल्लाह उर्दू सीखेंगे, खुद भी सीखेंगे और अपने बच्चों को भी इंशाल्लाह ये उर्दू सिखाएंगे। ये कब सिखाएंगे, जो समर हॉलीडे होता है ना, ये बहुत अच्छा है कि जो हमारे बच्चे मोबाइल टीवी पर जो टाइम वेस्ट करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, उनको अलिफ बा से जिस तरीके से अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपने यही स्टेप बाय स्टेप से जाना है। और जो समर हॉलीडे आता है ना, उस वक्त आप खुद ने सिखाना है अपने बच्चों को। तो देखिए मैंने खुद ने भी अपने बच्चों को सिखाई, वो भी तो ऐसे सेमी वगैरह से पढ़ रहे हैं ना, तो उनको मैंने खुद सिखाई, तब माशाल्लाह से वो खुद उर्दू के है ना, कससुल कुरान निकाल कर पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं। तो ये होता है, तो ये हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप सभी का हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए हम उर्दू कैसे पढ़ेंगे, ये तो आपको पता चल गई कि हमारे क्या क्या मकसद होने चाहिए उर्दू को लेकर, और ये हमें उर्दू क्यों सीखना है, और उर्दू कैसी है, और इसमें क्या क्या हिस्से हैं, आपने देख चुका। अब देखते हैं कि हम उर्दू सीखेंगे कैसे। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप पहले आपको हुरूफ की शनाख्त कराई जाएगी, है ना, अलिफ से लेके या तक। और उसमें क्या होगा, देखिए आपको उर्दू में आपको क्या होगा, हुर्फ तहजी पूरी अलिफ से लेके या तक दिखाई जाएगी। उसकी शनाख्त कराई जाएगी। आपने सिर्फ इतना करना है कि एक भी क्लास को आपने क्या करना है, मिस नहीं करना है। तब इसकी फुल गारंटी मैं लेती हूँ कि आपको पढ़ना आएगा ही आएगा। तो देखिए अलिफ से लेके या तक, हाँ ये बड़ा वाला या, यहाँ तक आपको पूरे हुरूफ की पहले शनाख्त की जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और फिर हम ट्रिक के जरिए सीखेंगे, आप खुद बोलेंगे कि मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया और इतना इजी सिखाया कि हम पता ही नहीं चला कि हम कैसे सीखेंगे, कैसे सीख चुके। तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने क्लास कोई मिस नहीं करनी। और आपने क्या करना है, जितना आपको होमवर्क दिया जाता है, हमारे 2 क्लास होते हैं देखिए, मंडे और ट्यूसडे, और टाइम भी सब क्या है, फ्री वाला टाइम है, जब भी सभी माँ क्या करती है, अपने अपने काम से फारिग हो जाती है। और होमवर्क क्या करना है आपने, देखिए 2 दिन क्लास होगी, मगर रोजाना कुछ ना कुछ होमवर्क आपको जो दिया जाता है, हम्म, जो क्लास हो जाती है, क्लास के एंड में आपको होमवर्क दिया जाता है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। और जब हमारा ग्रुप ओपन हो जाएगा, होमवर्क ग्रुप, तब आपने उस पर होमवर्क सेंड करना है। यहाँ पर आपको लिखने की भी मश्क ली जाएगी और पढ़ने की भी मश्क ली जाएगी। हम्म, तो ये इस तरीके से हमारा क्लास होगा। तो आपने अभी देखना है, मेहनत करना है, और बगैर नागा अपनी क्लास ज्वाइन करनी है। फिर वो जिम्मेदारी हमारी होगी कि आपको किस तरीके से नहीं आता आपने और देखिए यहाँ पे शर्माना नहीं है, हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं, उर्दू सीखने के लिए जमा हुए हैं। किसी को उर्दू फर्राटेदार आती है और वो यहाँ जमा हुआ, ऐसा नहीं, तो इसलिए शर्माना बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। बात पहली, अगर किसी रीजन से आपकी क्लास मिस हो जाती है तो होमवर्क आता है और हमारी रिकॉर्डिंग भी होती है,
ये हमारी रिकॉर्ड क्लासेस होती है। तो आपने क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को ये सब्सक्राइब करना है। आपको यूट्यूब पर हमारे पूरे उर्दू के जो होते हैं क्लासेस, रिकॉर्ड क्लासेस मिलेगी। तो अगर जब देखिए क्लासेस भी होते हैं, हाँ, रिकॉर्ड क्लास होती है हमारी, तो फिर वो रिकॉर्ड क्लास तो देख कर आप प्रैक्टिस भी करेंगे। मगर क्लास मिस नहीं करना, ये क्यों कह रही हूँ कि जितना हम क्लास में, क्लास के बाद भी जो हमारे सवालात होते हैं देखे है ना, तो वो आप क्लास के रिकॉर्डिंग के बाद पूछते हैं। तो जो आप आएंगे अगर क्लास में, जो आपको दिक्कत है आप वो पूछेगी, तो मुझे यहाँ समझ में आ जाएगा। इसलिए ये कह रही हूँ कि बिला जरूरत आपने क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी, तभी आपका है ना उर्दू बहुत अच्छे से आप सीख पाएगी। अगर हाँ, अगर कोई मसला है, कोई दिक्कत है, तो एक आध बार अगर आपकी मिस हो गई तो आप रिकॉर्डिंग देख कर कवर कर सकते हैं। मगर हाँ, रिकॉर्डिंग होती है इसलिए बार बार क्लास मिस ना करें, क्योंकि तो रिकॉर्डिंग होने के बाद हम क्या यहाँ पर मसले मसाइल देखते हैं कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, कौन सा वर्ड याद रहता है, नहीं रहता। हम इसके बारे में भी आपको यहाँ पर ट्रिक बताते हैं कि कौन से वर्ड्स को कैसे याद रखना है, उसको कैसे ड्रॉ करना है। ये सब आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस ली जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनाना है उर्दू के लिए, और उसी में उसका होमवर्क वगैरह करते रहना है आपने। हाँ, रोजाना जब आपको बोला जाएगा कि किस दिन आपने नोटबुक लेकर बैठना है, आपको बताया जाएगा, उस दिन नोटबुक लिया करे। जिस दिन पढ़ाई होगी, सिर्फ रीडिंग होगी, उस दिन रीडिंग का करना है। और जिस दिन राइटिंग क्लास होगी उस दिन नोटबुक और पेन लेकर आपने बैठ जाना है। इस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। अच्छी अच्छी नियतों के साथ बैठा करे, और अपने जो उर्दू सीखने का जो फैसला किया है उस पर अल्लाह आपको इस्तेकामत के साथ रखे, और आपके मकासद को अल्लाह पूरा करे इंशाल्लाह। और एक दिन जब हमारा आखिरी दिन होगा, एग्जाम होगी, आप खुद बोलेंगे कि मैं पहले दिन कितनी बाजी, मैं पहले दिन कितनी डरी डरी थी, पता नहीं मुझे आएगा अभी नहीं, और देखो आज मैं कितने अच्छे से उर्दू पढ़ भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ। इंशाल्लाह ये दिन जरूर आएगा अगर आप कंटिन्यू क्लास करेंगे। हम्म, इसलिए कह रही हूँ कि उर्दू को अच्छी अच्छी नियतों के साथ उर्दू की क्लास अटेंड करें। इंशाल्लाह आपका अल्लाह सब कराएगा। चलिए फिर हम क्लास एंड करते हैं। आप इसके बाद, क्लास के बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे, जो परेशानी होगी, जो सवालात होंगे आपका, हम इंशाल्लाह देखेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।